अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लास आज हमारा लेक्चर है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। फर्टिलिटी कैसे है, आगे इसको हम डिस्कस करते हैं। द मेल इज़ कंटिन्यूसली फर्टाइल फ्रॉम puberty टू ओल्ड एज एंड थ्रू आउट दैट पीरियड sex hormones are continuously secreted. The female, however, is fertile only during a few days each month, and the pattern of hormone secretion is indirectly related to the cyclical release of a secondary oocyte from the ovary. अब इसमें ये टेबल है कि इसमें हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, आगे उसके फंक्शंस क्या हैं और सोर्सेज क्या हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। एस्ट्रोजन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन है, इनहिबिशन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ठीक है, ये हमारा जी ये एक टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने देखना है कि कहाँ कहाँ से हम इसको लेते हैं और बाद इसके आगे फंक्शंस क्या हैं। रोल ऑफ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, द साइक्लिकल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स control the development of the secondary oocytes in a follicle. Gonadotrophic releasing hormone from the hypothalamus act as the anterior pituitary gland which release follicle stimulating hormone to bring about the oocytes maturation and release from the ovary. These hormones regulate the menstrual cycle, which is the cyclic preparation of the uterus to receive a fertilized egg, and ovarian cycle, during which the oocytes mature and ovulation occur. This month preparation of the uterine lining from the fertilized egg and normally begin at puberty. A menopause क्या है? When a female reaches 45 to 55 years of ago, the ovaries lose their sensitivity to follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. They stop making normal amount of the progesterone and estrogen, and the monthly menstrual cycle cases in what is called the menopause. Means to say, men months to pauses mean cassation. Event of the menstrual cycle. One way to understand the hormonal pattern in the normal monthly cycle is to follow the development of the oocytes and the physical event in the menstrual cycle. On average, it takes 28 days to complete one menstrual cycle, although the range may be to 22 to 45 days. During this time, the following events take place. The controlling center of the ovulation and menstruation is the hypothalamus. It release the regular cycle. गोनेडोट्रोफिक मतलब वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर है, एक कोई ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये इसके पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं। और आगे ये टेबल है फॉलिक्यूल, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल का। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद देखना है, इतना कोई ये आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आगे हार्मोनल रेगुलेशन इन द प्रेग्नेंट फीमेल। Pregnancy sets into the motion a new series of the physiological events. The ovaries are directly affected because as the embryo develops, the cell of the embryo and placenta release the hormone human chronic gonadotropin (HCG), which keeps the corpus luteum from disintegrating. The progesterone that it secretes is necessary to maintain the uterine lining. After a time, the placenta take over progesterone production and the corpus luteum degenerates. By the end of the 2 weeks following implantation, the concentration of the chronic gonadotropin is so high in the female blood and in her urine as well that an HCG immunological test can check for the pregnancy. As the embryo developed, the hormones are secreted. For example, prolactin and oxytocin induce the mammary gland to secrete and inject milk after childbirth. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्मोनल आपने इनके फंक्शन अच्छे से देखने हैं कि ऑक्सीटोसिन कब रिलीज़ हो रहा है, इसका क्या काम है, प्रोलैक्टिन कब रिलीज़ हो रहा है। एंड प्रोस्टोग्लैंडिन आल्सो स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दैट एक्सपेल द बेबी फ्रॉम द यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। कौन सा होता है वो? प्रोस्टोग्लैंडियन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो चाइल्ड बर्थ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
पेरेंटल डेवलपमेंट एंड बर्थ, फ्रॉम ज़ाइगोट टू न्यू बॉर्न, फिर द फर्स्ट ट्रीमेस्टर। ये बच्चे आप लोगों ने इसको देखना है, ये इतना सिंपली वर्डिंग में लिखा हुआ है, इजीली समझ आ जाएगी। जो हमने एफएससी में पढ़ा था इसके टॉपिक तकरीबन वैसे ही है, लेकिन ये थोड़ी सी डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन इनके हार्मोनल फंक्शन सोर्सेज वगैरह वही सेम है जो हमने एफएससी में देखे थे। ठीक है, ये एक डायग्राम बताई हुई है, इसमें बहुत प्रॉपर हर चीज़ डिस्कस हुई हुई है, किस तरह हार्ट, आई, ईयर, प्लेट किस तरह से डेवलपिंग हो रही है, कौन से वीक में किस तरह, बहुत डिटेल में ये दिया हुआ है। तो बच्चे ये आज का लेक्चर हमारा यही था, जिसमें ये मिल्क प्रोडक्शन एंड लैक्टेशन तक एंड हो रहा है। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है, इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, तो रमज़ान के रोज़े रखे बच्चों, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे हक़ में भी दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज़।